speaker for the day, and dearest students, a very good morning and also a very warm welcome in today's webinar. I'm very pleased to announce that Pitampura today's need theme, that is understanding climate change in reference to corona exigency. I hope it will be very useful and strengthen our information. Now, I invite Dr. Kusum Bhatia, convener of the webinar, to brief the student about the theme of webinar and also invite speaker with brief introduction to continue the webinar. Over to Dr. Kusum Bhatia. Please, Dr. Kusum Bhatia. Good morning to one and all. Today's topic is understanding climate change in reference to corona exigency. And the speaker of today is Mrs. Anita Sharma. Mrs. Anita Sharma is the principal of SD Public School in Delhi. She is the recipient of prestigious award, Pandit Madan Mohan Malviya Award. This award is conferred over to one educationist from the country for an academic year. She represented India in UNESCO conference on global citizenship in 2015. And there are many more things, many more achievements to tell about her. But now on to the topic. Today, she will discuss about climate changes and its relation with pandemic situation like COVID-19. She will also discuss about the important climate actions which can be taken by each one of climate change and to prevent future occurrence of such virus infected diseases. Now I welcome Madam Anita Sharma on behalf of principal, faculty and students of DIET Pitampura. Over to Ma'am Anita. Thank you, Kusumji, and thank you, Sheenam, for giving this opportunity to talk to the students concerned today about the climate changes as well as about the corona disease, which is happening. And we are also keen to understand, is there any relationship between the climate changes? And if there is relationship, then what is our responsibility? What is our role? So that we can save ourselves from such more pandemic situations in the future. So it is being said by the former president of USA, Mr. Barack Obama, that this is the last opportunity which our generation is getting to save the human species. And after this, probably we will not be able to get this opportunity again if we will not be conscious enough today. So first of all, I would like all the students to understand what this whole topic is all about, why we are talking about the climate changes, what is climate changes, and what is the corona emergency and how we are connected, how all of them are connected. I'm sharing my screen with all of you. Okay. So there will be some facts which when you will see and understand, you may find them very, very horrifying. But to fight any battle, the first and foremost prerequisite is to be aware of all the facts. So today we will try to make ourselves more aware about the current situation. Now, let us first try to understand what exactly is. You can see this picture. This is a picture on the left side is during the normal time. The Delhi was full of air pollution and we were often used to declare the holidays or to start the system like even odd vehicles to prevent this pollution situation. And this is the recent picture of Delhi during the lockdown period. लॉकडाउन पीरियड में दिल्ली इतनी साफ है और उससे पहले जो दिल्ली की सिचुएशन थी वो ऐसी है
और ऐसी आजकल बहुत सारी पिक्चर्स आप लोग आपस में शेयर करते होंगे। मैं देखती हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर भी लोग इधर उधर से इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं कि अब गंगा कितनी साफ दिख रही है, अब बर्ड्स दिख रहे हैं, अब पक्षी दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, ऐसी जो चीजें हैं, या ओशन में डॉल्फिन दिख रही हैं। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, ये सिचुएशन का इस आज की महामारी से क्या लेना देना है, जरा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। ये पिक्चर नासा ने ली थी 2012 में, एंड जब नासा ने ये पिक्चर ली थी, इसमें यू कैन सी व्हाट इज दिस सर्कल। ये जो स्फीयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? ये अर्थ है हमारी। तो जब ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू अर्थ को देखा गया, तो क्या ये अर्थ हमें एक प्लेनेट की तरह नजर आ रही है, या ये हमें बटी हुई नजर आ रही है कुछ कंट्रीज में, कुछ रीजन्स में, कुछ सिटीज में? You can see that from the other planet we can see Earth as a complete planet and not as a, and here you can see this, the name of this picture is given is blue marble. So Earth is looking like a precious blue marble. लेकिन अब हो क्या रहा है कि हम लोगों ने ऐसा किया है कि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आ गई और हर रोज 110 मिलियन टन्स ऑफ मैन मेड कचरा इज थ्रोन इनटू द शेल ऑफ अवर एटमॉस्फेयर, जैसे कि एटमॉस्फेयर ना हो, ये कोई ओपन सीवर हो। और ये हम ऐसा कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा समझें। सबसे पहले एक शब्द ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आपको मालूम है कि सन की रेज रोज एटमॉस्फेयर से पास होती हैं, लेकिन some rays they are reflected into space allowing earth to cool, but some other rays they trapped by carbon dioxide in the atmosphere. Now what happens is, if the quantity of the carbon dioxide increases in the atmosphere, then obviously more sun rays will be trapped, and if more sun rays will be trapped, that means more heat will be retained by the earth and the temperature of the earth will rise. So ये आप देख रहे हैं, ये इंफ्रारेड रेज जो है CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से कैसे हम जो रेज को रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था वो कैसे अर्थ में ट्रैप होती जा रही है। और इस सब की वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग अकर कर रही है। हम इतना फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। बट ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना? ग्लोबल वार्मिंग में आपको ये बात एक समझ में आ गई है अभी कि जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हम कर रहे हैं सन की इंफ्रारेड रेज का, उस एब्जॉर्प्शन से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आ गई है। लेकिन ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं। अब फॉसिल फ्यूल क्या है? आप ऐसा फ्यूल जब यूज करते हैं जैसे कोल, ऑयल, तो इन सब से जो एमिशन है CO2 का वो बहुत ज्यादा होता है। कुछ और ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनको हम बोलते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 है, मीथेन है, इन सारी गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गया, मीथेन बढ़ गया, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ गया, और इन सबके बढ़ने की वजह से हम ज्यादा सन की हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ज्यादा चिंता का विषय ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले भी था, लेकिन क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ती जा रही है, जितना वो रिलीज हो रहा है उसकी स्पीड पिछले 66 मिलियन ईयर्स में जितनी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। एंड ड्यू टू दिस व्हाट इज हैपनिंग, हम रोज कितनी एनर्जी जो है वो यहाँ पर ट्रैप कर रहे हैं इस मैन मेड कॉजेस की वजह से। 500,000 हिरोशिमा एटॉमिक बम्स की जितनी एनर्जी थी
ये हम per day of the year we are absorbing this. So you can understand the intensity of the problems which can be caused due to the global warming pollution. ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में यू कैन सी कि आपको 3 टाइप के टेम्परेचर्स दिख रहे हैं. द ब्लू जोन इज रिफ्लेक्टिंग द कूलर साइड, कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर है तो ब्लू जोन में है वो. व्हाइट वाला जो है वो नॉर्मल जोन को, नॉर्मल टेम्परेचर को, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 15 डिग्री सेंटीग्रेड है. और जो रेड जोन आप देख रहे हैं ये वो एरिया है जो इस नॉर्मल टेम्परेचर वार्मर जोन को दिखा रहा है आपको. लेकिन चेंजेस क्या आ रहे हैं, 1951 से लेकर 1980 तक हमारा जो ग्राफ था वो ऐसा ही था और एक सिमिट्री थी, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑब्जर्व कर रहे थे आप कि एवरेज टेम्परेचर से बिलो कितना है कूलर एरिया और जो अपर साइड पे है वो कितना है, हॉट एरिया कितना है. लेकिन अब ये सिचुएशन कैसी हो गई, अब आप देखें कि रीसेंट जो ट्रेंड है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है. So you can see that the cooler zone is being reduced and the average temperature is also reduced. जो मैं पहले बता रही थी कि 15 डिग्री टेम्परेचर था और अब ये जो हॉटर एरिया है ये आप रेड जोन देख रहे हैं, occupy extremely hot areas. So you can see that how the normal distribution curve is changed due to the increase in the temperature. Consecutively ऐसा हुआ कि 41 years तक global temperature rise होता रहा है. ये डेटा जो आप देख रहे हैं ये 2017 का है, but 2017 ही नहीं 2018 और 19 में भी ये ट्रेंड continued रहा है. So 2017 was the 41st consecutive year with a global temperature above the 20th century average. 20th century की average से ज्यादा है. तो आप देखिए कि 100 years के गैप को छोड़ दें, 41 years से लगातार हमारा टेम्परेचर राइज होता जा रहा है और 117 लोकेशंस को रिकॉर्ड किया गया वर्ल्ड में 2018 में, जहां पर सारे हीट रिकॉर्ड्स पुराने टाइम के टूट गए. So at least 117 locations around the world have set all-time heat records in 2018. ये आप जो बैनर देख रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बहुत हाई टेम्परेचर से कुवैत में रोड्स में और पुलिस को वार्निंग देनी पड़ी सारे मोटरिस्ट को, सारे व्हीकल ओनर्स आइए, अदरवाइज जो रोड के मेल्ट होने से व्हीकल्स उसमें रोड के अंदर ही फंस जाएंगे. So and at that time the temperature was 51 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो वार्निंग थी ये जुलाई 2017 की थी कुवैत सिटी की. और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, birds in the city also died and fell from the sky from heat exposure. तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि बरसात पानी की बजाय अगर बर्ड्स की हो रही है तो कितना खिलवाड़ हम नेचर के साथ कर चुके हैं और कितना हाई टेम्परेचर रहा होगा वहां पे. सिर्फ हाई टेम्परेचर होने से और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं. It is not only affecting the sky, it is not only affecting the human beings. The heat which is trapped by the ocean, 93% of the extra heat. अब अगर 93% एक्स्ट्रा हीट ओशन में जाएगी तो क्या होगा? हरिकेन्स, साइक्लोन्स, आप ऐसी चीजें आजकल रोज सुन रहे हैं, सुनामी, ये सब वार्मर ओशंस जो है, व्हाई दे आर लीडिंग टू मोर इंटेंस हरिकेन्स and why the hurricanes are intensified much more rapidly. कभी आप पहले सालों में सुनते थे कि एक आध हरिकेन आया, लेकिन अब
ऐसा लगता है कि ऐसी जो न्यूज़ है वो आम हो गई है। अभी आपने कल भी सुना होगा कि 2 दिन से वार्निंग्स दी जा रही थी कि मुंबई में एक जबरदस्त साइक्लोन आने वाला है और उसकी वजह से सबको वार्निंग्स दी जा रही थी कि उन एरियाज को खाली कर दें। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब एयर वार्म है तो क्या होगा, ओशन ने भी वार्म ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ कि जो वाटर वेपर हैं वो ज्यादा बने एंड वार्मर एयर इट होल्ड्स मोर मॉइस्चर। एयर के अंदर वाटर वेपर इंक्रीज होने से मॉइस्चर इंक्रीज हो गया। जब मॉइस्चर इंक्रीज होगा तो हेवी रेन्स होंगी, स्टॉर्म्स होंगे, सी लेवल राइज हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं और जेट स्ट्रीम्स फॉर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आप ओशन में तूफान की बात सुनते हैं या आप क्लाउड बर्स्ट, मैं आपको एक क्लाउड बर्स्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर है क्लाउड बर्स्ट की। ज्यादा वाटर वेपर बनने से और ज्यादा हैवी रेनफॉल की सिचुएशन में क्या होता है कि क्योंकि अर्थ का जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, वो सब जगह इवन नहीं है। तो जब ये वाटर वेपर राइज करते हैं और ये स्काई की तरफ जा रहे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं पर ये ज्यादा होंगे वाटर वेपर्स, कहीं पर कम होंगे। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कहीं तो एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं पर हरिकेन्स आ रहा है और कहीं पर ड्रॉट वाली सिचुएशन आ रही है। दिस इज द पिक्चर ऑफ 2015 and this is about US, so how it has destroyed that particular area. This is the drought in Chennai, May 17, 2017 picture. So what is happening that this uneven distribution, this climate change is also creating lots of food and water shortages, pandemic diseases. People are going are displaced from their actual positions. उनको रिफ्यूज लेना पड़ता है दूसरी कंट्रीज में, अपनी एक्चुअल जगह से वो डिस्प्लेस हो गए। डिस्ट्रक्शन इतना होता है नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। तो सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये खाली ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका असर नहीं होता है, इस सबका असर एनिमल्स पर भी होता है और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर भी इसका असर है। तो क्लाइमेट चेंज से क्या क्या चीज अफेक्ट हो रही है, हम एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए कि जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई से बहुत सारी बातें हमें समझ में आती हैं। अगर ड्रॉट की कंडीशन है तो जो आपके पास फूड प्रोडक्शन है वो कम हो गई। अगर ग्रेन प्रोडक्शन, टोटल यील्ड कम हो गया तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। फ्लड की सिचुएशन में भी ऐसा ही होता है कि अगर फ्लड आ गया तभी जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो शॉर्टेज हो जाएगी। हीट, एक्सेसिव हीट है, हीट की कंडीशन से ड्रॉट हो सकता है। अमेज़न आप सुनते रहते हैं अक्सर, फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुनते रहते हैं। तो जो फॉरेस्ट फायर है वो भी क्या है, एक्सेसिव हीट की वजह से है। और जब ये फॉरेस्ट फायर वगैरह कहीं पे भी ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो इसमें जो हार्म होता है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है। तो यहाँ से भी फूड चेन और फूड सप्लाईज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से भी जो फूड प्रोडक्शन है, जो भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। और न्यूट्रिशन जो फूड का है वो भी डिस्टर्ब होता है। मैं आपको अभी कुछ स्लाइड्स दिखाती हूँ कि कैसे जो है हमारे एक एक जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड की वो कम होती चली जाती है अगर ये पोल्यूशन की सिचुएशन है, अगर ये शॉर्टेज ऑफ वाटर की सिचुएशन है, ड्रॉट की सिचुएशन है। और फिर कैसे वो ज्यादा टॉक्सिकेटेड हो जाते हैं फूड्स, पेस्ट कैसे उसको अफेक्ट कर रहे हैं। राइजिंग कंसंट्रेशंस ऑफ
These are all studies done by the various research institutes in the USA. Zinc, iron, copper, magnesium, calcium, they could also decrease in all the foods by 5 to 10%. Their quantity may decrease by 5 to 10% because of the CO2 level rise. If we talk about the ocean fishes, so when the temperature of the water goes up, the nutritional quality of the ocean fish also decreases. तो जो लोग fish food लेते हैं, उनको भी जो nutritional value है वो कम मिल रही है जितनी वो सोचते हैं कि उनको मिलनी चाहिए उसके comparatively. Then drought की situation में और क्या problems आती हैं कि temperature increase हुआ, drought occur हुआ, तो जो toxic accumulation है plants में और livestock में, that increases and it affects the human health as well as the animal health. Wheat leaf rust, which thrives in higher temperature and humidity, that can also cause crop loss of 20 to 30% or more. So how all this is happening? बिल्कुल एक सीधा सा प्रोसेस है. आपका प्लैनेट हीट हो गया, वार्म हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया. टेम्परेचर राइज होने से एनिमल्स दे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स पोल, यानी कूलर एरिया में जाने की कोशिश करेंगे, तो वो अपनी जगह से वो डिस्प्लेस हो गए. When animals they are moving to the poles, they are coming in contact with the new animals. When they are coming in contact with the new animals, this creates an opportunity for new pathogens to get into new host. तो ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स अकर कर सकती हैं. इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन हुआ. डिफॉरेस्टेशन में भी क्या हुआ कि लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स हो गया. हमने सीमेंट प्रोडक्शन शुरू करी, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी शुरू करी. हम ये बोलते हैं हमारी सिटीज जो है वो कॉन्क्रीट जंगल्स हैं. उस कॉन्क्रीट जंगल में ह्यूमन बींग्स के लिए तो प्लेस है लेकिन एनिमल्स के लिए प्लेस नहीं है. तो एनिमल्स कहाँ भागेंगे? एनिमल्स जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. तो जब वो अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ करके दूसरों के कांटेक्ट में आ रहे हैं और दूसरे एनिमल्स के साथ में जा रहे हैं, तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आप अपने साथ साथ क्या करेंगे? जो वहां की डिजीज है वो भी ले जाएंगे, जर्म्स भी आप शेयर कर रहे हैं. सो दिस इज हैपनिंग विद द एनिमल्स आल्सो. You must have come across the stories कि कोलंबस समुद्री यात्रा पे निकलता था और नए देशों को ढूंढता था. तो उस समय की सिचुएशन ऐसी होती थी कि अगर उनके साथ में मतलब कोलंबस या कोई भी अगर नाविक जो है वो यात्रा पे निकलता था और उनके साथ में एक पूरा हुजूम जा रहा है 200-400 लोगों का, तो लोगों को ये पता होता था कि जब ये लोग वापस आएंगे तो इसमें से शायद 1/3 लोग भी नहीं बचेंगे, 1/3 या 1/4 लोग भी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो डिफरेंट डिजीज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. तो और डिजीजेस के रीजन ये होते थे कि वो जब जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जो उनका नेचुरल हैबिटेट था वो छूट जाता था. उस समय आज की तरह तो सुविधाएं थी नहीं, तो जो उनको नेचुरल वेजिटेशन थी, जो नेचुरल फूड मिलना चाहिए था, वो फूड नहीं मिलता था. वो सारा स्टोर्ड फूड वो कंज्यूम करते थे. नई जगह पर जाकर के जो नॉनवेज लेने वाले लोग थे वो भी नए एनिमल्स नए उसके कांटेक्ट में आते थे. तो ऐसा बहुत कुछ होता था जिसकी वजह से वो जो पूरा शिप होता था वो डिजीजेस का घर बन जाता था. और कहा जाता है कि बहुत सारी डिजीज जो है वो इसी तरह से वर्ल्ड में फैली हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोगों के ऐसी यात्रा करने से, जब वो बिना मेडिकल एड के, बिना उस तरह के अवेयरनेस और नॉलेज के ट्रैवल करते थे. तो यही जो है ये जब ह्यूमन बीइंग्स के केस में ऐसा हो सकता है, तो आप सोचिए कि जब एनिमल्स अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, तो वो अपने साथ साथ क्या क्या लेकर के जा रहे होंगे और किस तरह की डिजीज का जन्म हो रहा होगा, कैसे वायरस बन रहे होंगे. लार्ज लाइवस्टॉक फार्म्स, they are also the cause of the infections from animals to people. जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन्होंने भी ये अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर वो मार्केट में परचेज करने दूसरे के ऊपर तीसरा. So what one animal is
जो उसका बायो वेस्ट होता होगा वो दूसरे एनिमल के ऊपर जब वो है तो वो जो हाइजीन है मेंटेन, और वही मीट लोग कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट इवन नोइंग कि उसके अंदर से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आज की डेट में ऐसा बोला जा रहा है कि इस समय पे हमारे पास 3,25,000 वायरसेस इस तरह के जन्म ले चुके हैं। कोरोना तो एक है जिससे अभी आपका सामना हुआ है, लेकिन ऐसे मिलियंस वायरस जो है आ चुके हैं, और अगर अभी हम नहीं जरा भी कॉन्शियस हुए तो मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन है। और ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई एक वायरस, कोई एक लेबोरेटरी सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज है वो भी जिम्मेदार है। और उस क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो सारे ह्यूमन बींग्स हैं, बिकॉज हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो कंज्यूम करने की जो हमारी हैबिट्स हैं, कंज्यूमेबल हैबिट्स और मटेरियलिज्म की जो आदतें हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हम मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन आई है, ये देखिए आप, ये सारी इस समय पे जितनी मेडिकल institutions है वर्ल्ड की, all of them they have joined hands and they demands immediate action. Now you can see in this slide कि हेल्थ कैसे असर कर रही है, हेल्थ के ऊपर क्या असर हो रहा है। Food, extreme weather, infectious disease, mental health, allergens, heat stress, air pollution, ये सब के सब का impact health के ऊपर है। If you know that you will be surprised to know that in the whole world every year 8 millions of deaths they are occurring just because of air pollution. सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से हम 8 मिलियन लोगों को हर साल खो रहे हैं, और हिंदुस्तान का ये जो डेटा है ये 1.2 मिलियन है। तो 1.2 मिलियन लोगों को हम हर साल सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से खो रहे हैं, और हमें ये पता ही नहीं चलता है। अभी कुछ पिछले 3 से 4 सालों के बीच में थोड़ा सा हमने इस बात को रियलाइज करना शुरू किया है कि अगर एयर क्वालिटी खराब हो रही है, अगर एयर लेवल जो है वो जो क्वालिटी इंडेक्स है एयर का वो खराब हो रहा है, तो किस तरह की रेस्पिरेटरी डिजीजेस अकर कर सकती हैं। हर साल विंटर्स में हमारी सरकार को स्पेशली दिल्ली स्टेट में छुट्टियां डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। क्यों डिक्लेयर करनी पड़ती हैं? क्योंकि इस हद तक सिचुएशन इंक्रीज हो जाती है कि हमको हमारे यहाँ जो है एस्थमा के केसेस बढ़ जाते हैं, ब्रोंकाइटिस की केसेस बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और मैक्सिमम डेथ्स जो हैं वो आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों की उसी सीजन में होती है। तो हमें हर तरफ से अपने आप को अब कॉन्शियसली ये देखना है कि हम कैसे चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हीट स्ट्रेस है, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस 51 डिग्री सेल्सियस होगा तो सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये डेटा है। Extreme heat events, they can cause more deaths annually than all other extreme weather events combined. Pollution, एयर पॉल्यूशन का मैंने आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आपको एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल पता है। व्हीकल से जो एमिशंस हो रहे हैं वो तो हमें मालूम ही है। एयर एमिशंस हम कर रहे हैं, एरोप्लेन्स का ट्रैफिक बढ़ रहा है, रोड का ट्रैफिक बढ़ रहा है। इन सब में जो फ्यूल यूज हो रहा है वो ऑयल है, जिसकी वजह से हम अपने क्लाइमेट को बचाने में मदद कर सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो आप अपने लिए ध्यान रख सकते हैं। दो टाइप के डिसीजन होते हैं, एक होते हैं जो पॉलिसी लेवल पर फिक्स किए जाते हैं, जैसे कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने
2015 में पेरिस एग्रीमेंट में हिस्सा लिया और ये कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट कम करने के लिए या फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन कम करने के लिए हम सोलर पावर प्लांट्स लगाएंगे। और जितना हमने कमिट किया था, इंडिया ने जितना कमिट किया था कि 2020 तक वो सोलर पावर प्लांट्स लगाएंगे, वो पॉलिटिकल विल की वजह से, लोगों की अवेयरनेस की वजह से वो टारगेट हम लोगों ने 2019 में ही अचीव कर लिया। और अब हमारा जो ग्रेटर टारगेट है वो 2030 के लिए दोबारा एक नया टारगेट हमने फिक्स किया। तो सब लोग ऐसी चीजों में तो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ऐसी सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला करना है या नहीं करना, ये चीजें इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर डिसाइड होती है। लेकिन एज ए पर्सन आप क्या कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं, हर कोई कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये आपको समझना है। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस कैसे कम होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होगी एटमॉस्फेयर में तो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मैक्सिमम प्लांट्स लगा सकते हैं। तो एक प्लांट को जरूर ग्रो करें, खासकर से आज एनवायरनमेंट डे है, तो आप सोचिए कि चलिए आज ही एक पौधा मैं अपने घर के बाहर लगाता हूँ और मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता हूँ सोसाइटी इस एयर इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए। आप ये किसी स्पेशल ओकेजन पे भी कर सकते हैं। आप किस तरह का फूड ले रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत उसका भी बहुत इम्पैक्ट है एटमॉस्फेयर के ऊपर। जैसे साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि इस समय आप जो फूड चेन में लोअर लेवल के ऊपर जो फूड है, अगर आप वो फूड ले रहे हैं तो वो ज्यादा आप मदद कर रहे हैं हमारे पूरे जो वेजिटेशन है उसको भी ठीक रखने में, और कंप्लीट जो फूड साइकिल है उसको भी ठीक ठाक रखने में। तो आप वेजिटेबल्स ज्यादा लें, फ्रूट्स ज्यादा लें, ग्रेन्स ज्यादा लें, बीन्स ज्यादा लें, जो ऑर्गेनिक और लोकल फूड है वो ज्यादा लें। जो ट्रांसपोर्टिंग से जो फूड आ रहा है ट्रक्स में, शिप्स में, रेल में, ये इस सब की वजह से क्या हो रहा है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जितनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी उतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज होगा। तो आप ये कोशिश करें कि वो आप जो फूड यूज करें। अभी मोदी जी ने भी रिसेंटली एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, बी वोकल फॉर लोकल। तो आप ये वोकल फॉर लोकल का मतलब ये है कि ये ढूंढे कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या उपलब्ध है आसानी से। क्या आप अपने घर में एक छोटा सा किचन गार्डन बना सकते हैं, आप कुछ थोड़े थोड़े फल सब्जियां क्या घर पे उगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देश में, वो कम किया जा सके और आप सेल्फ सस्टेनेबल हो सके। फिर हम लोगों को बहुत ज्यादा आदत होती है फिजूल खर्च करने की, हमें बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग, हम जितनी ज्यादा करते हैं, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू बाय द लेटेस्ट व्हिच इज अवेलेबल इन द फील्ड। सो और वो चाहे वो क्लोथिंग के मामले में है और चाहे वो किसी और एरिया में है। अगर हम मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है कि हर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जैसे ही कोई नया मोबाइल आया है हमें खरीदना है, और उसके बाद पुराने वाले का हम क्या करते हैं, वो डंप हो जाता है। आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डंप पड़े होंगे, या जब अगर वो डंप नहीं किए आपने, आप उसको कहीं थ्रो कर देते होंगे, तो जो हमारे लैंडफिल्स हैं वो भरे हुए हैं। आप जा करके देखिए लैंडफिल्स के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है, चाहे वो पॉलीथीन है, चाहे वो पुराने कपड़े हैं, चाहे वो कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कुछ भी जो आप यूज कर रहे हैं, तो हम जो कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, जब हम उसको डिस्पोज ऑफ भी करें तो वो डिस्पोज ऑफ हम सोच समझ के करें कि इसका क्या, अगर पुराना कोई क्लॉथ है तो क्या उसको रिसाइकिल करके, रीयूज करके इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी और तरीके से उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाई वी जस्ट वांट टू थ्रो इट, देयर आर मेनी पीपल हु मे बी इन द नीड ऑफ क्लोथ्स, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। जब आप पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, तो क्या आप उसको डिसमेंटल करके कैन यू टेक द हेल्प ऑफ समबडी जो ये आपको बता सके कि उसमें से जो यूजफुल चीजें हैं वो कम हो जाए, तो वो अलग निकाली जा सके। जो रीयूजेबल है, क्या कोई चिप उसके अंदर की रीयूजेबल हो सकती है, उसके अंदर बहुत सारा मेटल होता है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में रीयूज हो सकता है। तो आजकल अब ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर काम करने लगी हैं,
और वो मदद भी करने के लिए तैयार रहती हैं। आप अपने घर में प्लास्टिक का हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और हम ये भी बोलते हैं कि प्लास्टिक के यूज को कम करो, तो हमें थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि प्लास्टिक में भी बहुत सारा प्लास्टिक ऐसा है जो रीयूज हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है। एग्जाम्पल, आप जो प्लास्टिक की बॉटल्स यूज करते हैं, पेट बॉटल्स यूज करते हैं, ये सारा का सारा जो प्लास्टिक बॉटल्स है, इसको आप इस तरह से थ्रो मत करें, इनको भी इकट्ठा करके आप अगर इसको भी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली करेंगे या किसी एक ऐसे वेंडर तक पहुंचा देंगे जो इसको एक ठीक जगह पहुंचा दे, क्योंकि इस पूरे जो ये पेट बॉटल्स है इसका इस्तेमाल कुछ क्लोथ बनाने में, पॉलिएस्टर क्लोथ बनाने में होता है। तो बहुत से ऐसे जो इंडस्ट्री वाले हैं जो पॉलिएस्टर क्लोथ का यूज कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करने की जरूरत है कि हम कैसे जो है वेस्ट को मैनेज करें और वेस्ट को कम से कम प्रोड्यूस करें। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लगभग हर घर में ऐसा हुआ था कि सभी लोग परेशान हो गए थे कि कचरा जो है, अगर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे तो उस कचरे को जो है वो कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने ऐसी कोशिश करी कि उन्होंने वेस्ट सेग्रीगेशन शुरू किया। उन्होंने देखा कि हम कम से कम, अगर वो फूड वेस्ट है या वेजिटेबल वेस्ट है या फ्रूट पील्स का वेस्ट है, तो उस वेस्ट को कैसे यूज किया जाए, उसको अलग स्टोर करके उससे जो है वो कोई पेस्टिसाइड बनाया जा सकता, नॉट पेस्टिसाइड, उससे जो है कुछ ऐसा कंपोस्ट बनाया जा सकता है जो घर में ही प्लांटेशन के लिए काम आ सके। प्लास्टिक का या जो आपके पास में रैपर्स हैं किसी भी चीज के, क्या आप उनको अलग रख सकते हैं और वो अलग से उसको दे सकते हैं। आपका जो भी वेंडर आता है जो कलेक्शन करने के लिए आ रहा है, वेस्ट कलेक्शन के लिए, वो उसको अलग से हैंड ओवर किया जा सकता है। उससे एक तो उसका समय बचेगा और दूसरा वो एक ऐसी उसको ठीक जगह पे पहुंचा देगा जहां पर वो जाकर के फिर से इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें ये सारी चीजें छोटे छोटे से हमारे ये स्टेप्स होंगे जिसकी वजह से हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। क्या हम ये बात का ध्यान रख सकते हैं कि कहीं पर हम पानी को फालतू चलता ना छोड़े या हम कम से कम वाटर कंजम्पशन करें। आप अगर if you want to use water for washing or clothing or bathing, can you use in the bucket either instead of using the shower? तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसकी वजह से आप वाटर शॉर्टेज को रिड्यूस होने से बचा सकते हैं। आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा यूज करें, वॉक ज्यादा से ज्यादा करें, साइकिलिंग करें, बाइक अगर आप यूज कर रहे हैं कार पूल कर लें, राइड शेयर कर लें। तो ये सारी जो चीजें, इससे क्या होगा, ट्रैफिक भी कम होगा, CO2 एमिशन भी कम होगा। छोटे छोटे से आप अपने आप आइडेंटिफाई करिए कि वो क्या एक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से CO2 जैसी गैसेस का एमिशन कम हो, और CO2 जैसी गैसेस का एमिशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो क्लाइमेट चेंज अकर नहीं करेगा उस स्पीड पर जिस स्पीड पर अभी अकर कर रहा है वो। और ये सब करने से आप इस प्लेनेट को बचा पाएंगे, क्योंकि फिर जो एनिमल्स हैं उनको उनका नेचुरल हैबिटेट मिलेगा, वो यहाँ से वहां इधर से उधर भागेंगे नहीं। और ऐसा नहीं होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जो जर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो पैथोजेंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं या उनके होस्ट चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सब कुछ आपको you can see that you can help to reduce all that situation. You can help in minimizing all that situation. And then the last thing is that get politically active. इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जहां पर आपको लग रहा है कि आपको बोलने की जरूरत है और आपको गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में कुछ भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, उनको अप्रोच करने की जरूरत है, आप अपनी आवाज उठाइए, आप ग्रुप्स बनाइए, आप अप्रोच करिए डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को,
आपके पास RTI की सुविधा है, आप उसको यूज करिए, आप मिलिए जाकर के डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल से और देखिए कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं इसमें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद हमारे बच्चे जितने भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं वो इन छोटे छोटे स्टेप्स की अपने आप से एक लिस्ट बनाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। कम से कम 10 स्टेप्स की आप लिस्ट बनाइए कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास कैसे चेंज ला सकते हैं और किस तरह से क्लाइमेट चेंज को एक ड्रास्टिक सिचुएशन में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much. Students, do you want to ask some questions? Any participants who wants to ask question, please ask. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैम मैं क्षितिज सेक्शन A फर्स्ट ईयर से। मैम हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने की बात की, उसमें सुधार हुआ लॉकडाउन में, तो आपने कहा कि तस्वीर लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ उसी तरह की हो जाएगी। तो मैम हमने देखा, बताया कि इस लॉकडाउन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव हुआ है नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे अल्ट्रा वायलेट दिखाई दे रही है। लेकिन वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट और सब इंटेलेक्चुअल्स, सब एजुकेशनिस्ट, सब लोग मिल करके लगे हुए हैं कि क्या सोल्यूशन का हल ढूंढा जाए। लेकिन वो लोगों की संख्या पूरे वर्ल्ड में कितनी होगी? 20%। तो 100% पॉपुलेशन जिस चीज के लिए जिम्मेदार है उसका सोल्यूशन सिर्फ 15 से 20% लोग मिलकर के ढूंढे और उसी को वो इम्प्लीमेंट कर दे और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दे, उससे सोल्यूशन निकलने वाला नहीं। तो सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जहां पे भी हैं हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ इस जगह को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you. It is well explained by you on this special day. Again, thank you so much. Now present the final declaration of the webinar. In here about shift of summer temperature, discussed about 97% of heat is trapped in earth and approaching to ocean. So every year different type of cyclones are coming. Also discussed about deforestation, medical emergency. Also discussed about affecting food supply because of heat, water, fire, and also discussed about health affecting. Also discussed about air pollution, which is occurring through congestion of plane in the sky and because of industrial smoke getting respiratory disease. Also discussed about actions to be taken to prevent future outbreak. These were eat low on food chain, choose organic and local food, application of solar power plant, don't buy fast fashions, how to dispose waste during lockdown, less water consumption, get political active. Thank you so much, ma'am, for this webinar. Now I invite Dr. Kusam Bhatia, convener of the program, or also participants. Please, Dr. Kusam Bhatia. Thank you, Shinam ji. Anita ma'am has given us a lot of useful